Welcome to Zanklo. In this video, we are discussing the shifting operator of numerical analysis. So we have already discussed about the delta operator. Now we are discussing about the shifting operator. And in this shifting operator, first it is denoted by E. First is denoted by E. It is called a shifting operator, or we can say this is called a forward shift operator or forward difference operator. There are the two different name: forward shift operator or forward difference operator. It is look like this one. So if we have a function and if we are taking of this function expectation, oh sorry, this is not expected, this is a shifting operator, so we will get the x plus 1. Simply we have to plus 1 in this operator. Suppose that we have a power 2 e square, so simply we will plus x plus 2, and 3, so plus 3, and 4, so plus 4. These are the properties. First one properties, there are total 5 properties effect on a function. If a of x equal to fx plus 1, effect on forward difference operator. Second one is effect of so there are total 5 properties. First one is effect on a function, so first one already discussed. Second one is the difference operator, so we are already discussed about the delta fx. So delta fx, when we find the delta fx, so fx plus 1 and minus fx, right? So when we convert this fx plus into e, so we will get this one and fx, and when we take fx as a common, so we will get e minus 1, right? So this is the second property. Third one is the power rule. Power rule is e to the power n, so this n will come to plus n. And fourth one is inverse of e, so inverse e will similarly goes up to minus 1. And the fifth one is cumulative property, which is e to the power m and e to the power n equal to e to the power m plus n. Application in numerical analysis, so there are different types of application. First is finite difference formula to approximate derivatives, differential equations solving. Third one is Newton forward and backward interpolation formula, and fourth one is using discrete calculus and numerical differentiation. So these are the four basic. So basically, we will find the values of the in interpolation and formulas, and we can find the first difference or difference equations. Now the first example which is given here, which is compute the first forward difference using e. देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है compute the first forward difference, यानी कि पहला डिफरेंस निकालने के लिए ये हमने निकाल, ठीक है, ये हमारा क्या है, डेल्टा ऑपरेटर है, ये क्या है, शिफ्टिंग ऑपरेटर है, और ये हमारा अभी प्रॉपर्टी में हमने जैसे कि देखा ये आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमें गिवन है कि आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जिसमें हम आप क्या रख रहे हैं कि एक एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 4, 3 रखेंगे तो आ जाएगा 9, और इसका अगर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखें तो जनरलाइजिंग फॉर एक्स टू द पावर n is we can derive a general formula for e. So अगर आपके पास डेल्टा, आपको ऐसा दिया है कि डेल्टा निकालना है, डेल्टा की पावर एक्सन निकालना है, तो आप इस डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 प्लस डेल्टा। ई की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस डेल्टा, जैसे कि हम ऊपर भी प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो ई प्लस इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा होती है, तो जब ये इधर जाएगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस 1 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हम यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स एन करेंगे, देन एक्स एन करेंगे, और देन
जो इसमें पावर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर एन ये हो जाएगा, और एक्स एन ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको हम अगर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें सीरीज़ मिलेगी, जो कि एक्स की पावर एन की सीरीज़ है। इसको हम लिख लेंगे माइनस, इसमें से एक्स एन कर देंगे तो माइनस एक्स एन, यानी कि ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा ओनली ये वाला पार्ट। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा एक्स की पावर एन जो वैल्यू बचेगी वो केवल इतनी बच जाएगी। सिमिलरली अगर अगर आप इसमें इस वैल्यू में, जैसे कि हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला जो आ चुका है, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स की पावर एन निकाला था, डेल्टा एक्स की पावर एन की वैल्यू पूरी आ चुकी है ये वाली। इस वैल्यू में अगर मैं इसकी जगह एन की जगह 2 रखता हूँ तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2x+1। तो आप या तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप, या फिर निकाल सकते हैं, सीरीज आप याद कर सकते हैं, और सिंपली आप इसको याद करके सिंपली क्या करना है, 1+x की पावर n है, इसका क्या करना है, बायनोमियल एक्सपेंशन करना है। और बायनोमियल एक्सपेंशन से आपको कुछ ये मिलेगा, x की पावर n n x की पावर n-1 प्लस n(n-1/2) x की पावर n-2 और so on। और इस तरीके से फिर आप ये वैल्यू फाइनल निकाल सकते हैं। और इसमें अगर आप डेल्टा की वैल्यू भी बोली है, सॉरी एक्स की वैल्यू बोली है 2 की, इसमें रख के हम 2 की वैल्यू निकालेंगे, वो जो कि 5 है, और ऊपर भी देखा जाए तो ऊपर भी 5 आई थी, है ना, जैसे कि आप देख सकते हो डेल्टा F2 की वैल्यू क्या आई थी 5, और यहाँ पे भी डेल्टा F2 की वैल्यू 5 ही आई है। इससे ये प्रूव होता है कि हमारा जो वैल्यू है शिफ्टिंग ऑपरेटर से निकालने के बाद वो सही आया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंस यूजिंग ई। हायर ऑर्डर डिफरेंस यूजिंग ई का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के डिफरेंस ऑर्डर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस होता है, सेकंड डिफरेंस ऑर्डर होता है, फिर थर्ड डिफरेंस ऑर्डर, फिर हायर हायर ऑर्डर डिफरेंस की तरफ भी जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, डेल्टा एफ एक्स को अगर निकालना है तो एफ एक्स प्लस में से एफ एक्स को माइनस कर देंगे, e-1 एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस को निकालने के लिए भी आप इस तरीके से ही लिखेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स को अगर आपको निकालना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसकी जगह e-1 रख देंगे और इसको आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड के लिए आप थर्ड में भी ऐसे ही सेम रखेंगे। न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं कोई हायर ऑर्डर के लिए, जैसे कि आपको दिया है ये फंक्शन और बोला है कि इस पे डिफरेंस फाइंड करना है 2 पर। ठीक है, अब जब आपने एक एक वैल्यू, जैसे आपने रख लिया, ये रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख के देख लिया, और 5, ये आपकी वैल्यूज निकालनी आपने खुद से, या आपने 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू रख के इनकी फंक्शंस की वैल्यू निकाली। 2 पे रखेंगे तो 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, और बोला क्या है, कब डिफरेंस कब कितने में फाइंड करना है, 2 पर फाइंड करना है। तो फर्स्ट डिफरेंस हम 2 पर फाइंड, मतलब सबसे पहले निकालेंगे हम फर्स्ट डिफरेंसेस, फिर निकालेंगे हम सेकंड डिफरेंसेस और थर्ड डिफरेंसेस। तो थर्ड डिफरेंसेस पे जैसे कि 0 आ चुका है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो देखिए डिफरेंसेस यानी कि 2 पर डिफरेंस जो आए हैं हमारे, एक तो 2 पर डिफरेंस जो आया है वो आया एक 5 आया है। सेकंड डिफरेंस जब हमने निकाले तब 2 पर हमारा एक जो है ये क्या आया, ये भी 2 आया है, सॉरी ये 5 आया है, ये 2 आया है, और फाइनली 2 पर ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू जो है वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे सेम हम क्या फाइंड करने वाले हैं, ये भी हम एक्चुअल में पढ़ चुके हैं, ये क्या कहते हैं, इसको हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और इस फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले तो हमारा काम है कि इस फॉर्मूले को याद करना। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एफ ए लिखा है, ये सब क्या है, फर्स्ट डिफरेंसेस। जैसे कि अगर आप वैल्यू देखोगे, जैसे कि एक्स की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे है 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू, इधर की वैल्यू है 1 4 9 16। ठीक है, तो ये जो है एफ ए की वैल्यू है फर्स्ट वाली।
क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 1। ऐसे ही अगर डेल्टा एफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो उस हिसाब से हम ले लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस पॉइंट पे बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 2.5 पे निकालना है, तो 2.5 यानी कि जो है वो किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है ना। देखिए मैं वैसे इसको करा चुका हूँ पिछले इसमें, ये फिर से रिपीट है, तो आप पिछली वीडियो डेल्टा ऑपरेटर की देख सकते हैं, उसमें डेल्टा ऑपरेटर में ये वाला एग्जांपल भी समझाया गया है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। मैं आपको बस ऐसे शो कर देता हूँ। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई है, कंक्लूजन दिया है और लास्ट में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है, जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी जो दी गई है आपको 2000, 2005 में, 2010 में और 2015 में। 50,000 पॉपुलेशन थी, 65,000 थी, 90,000 थी, देन 1,30,000 थी। आपको प्रिडिक्ट करना है कि 2020 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी ना। सबसे पहला जैसे कि आपको निकालना होता है, क्या निकालना होता है, ये हमारा पास x की वैल्यू है, ये fx है, ये आपको निकालना रहता है डेल्टा fx, ये निकालना होता है डेल्टा x स्क्वायर fx, ये निकालना होता है डेल्टा क्यूब fx। डेल्टा fx की वैल्यू जो निकालेंगे वो आपको इसमें से इसको माइनस करके निकालना रहता है। जैसे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो 25, इसको माइनस कर रहे हैं तो 40 आ गया। सिमिलरली आप बाकी भी ऐसे ही निकालेंगे, है ना। जैसे कि इसको माइनस करेंगे तो 10, इसको माइनस करेंगे तो आ रहा है 15 और इसको माइनस कर रहे हैं तो 5 आ गया। और आगे बढ़ते हैं, जैसे आपके पास आपको फाइंड क्या करना है, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से 2020 की वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करना है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको p फाइंड करना पड़ेगा, तो x माइनस ए अपॉन में h रख के आप फाइंड करेंगे। क्योंकि h जो डिफरेंस है, h का मतलब होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ईयर के बीच में डिफरेंस कितने का दिया है, वो दिया है 5 का डिफरेंस, तो हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। x की वैल्यू जो है वो हमारी है, वो कितनी है, x की वैल्यू जो हमें बोला गया है फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू कितनी है, 2020, तो हम क्या रख देंगे 2020। और a का मतलब जो होता है इनिशियल पॉइंट, यानी कि x0 भी लिख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट जो है वो है 2000। जब इसको माइनस कर रहे हैं तो 20/5 यानी कि 4, p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इस 4 को हम उसमें रखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। अब फॉर्मूले में तो रख देते हैं, चलिए। यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, एफ एक्स दिया है डेल्टा, अब यहाँ पे एफ ए की वैल्यू, एफ ए यानी कि एफ एक्स जीरो की वैल्यू जो कि है आपकी 50, तो हम 50 रखेंगे, क्या रखेंगे, जैसे रखा भी होगा मैंने, हाँ रखा है 50, ठीक है। प्लस फॉर्मूला क्या है, पी, फिर क्या है डेल्टा एफ एक्स जीरो, फिर है पी माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो, और इस तरीके से है ना। तो p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 निकाली थी हमने ना। डेल्टा एफ एक्स जीरो की वैल्यू, डेल्टा एफ एक्स वैल्यू जो है वो आपकी है 15, और इधर है 10 और इधर है 5, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू हम इसमें रखने वाले हैं। पहले 15 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तीनों की तीनों वैल्यू रख दी, और यहाँ पे आ गया p की वैल्यू 4, फिर p माइनस 1 यानी कि 3, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट जो आएगा p माइनस 1, p माइनस 2, और लास्ट में 3 फैक्टोरियल में इंटू में 5। फाइनल इसको पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए आप फॉर्मूले के हिसाब से भी रख के देख सकते हैं आराम से, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, आराम से आप फॉर्मूले को देखिए, उसको उसमें रखते जाइए फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसके अलावा अगर आप नोट्स के लिए तलाश में हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे,
और इसके अलावा अगर और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।